Okay, but I see. Okay, the topic for today is DNA replication. So in yesterday's recording, I have already explained. Okay, we are familiar with two type of nucleic acids. One is DNA and another is RNA. So all of you know, you have studied in class 11 in chapter biomolecules. Okay, you have very much known about the double helical model that was given by the scientists Pearson and Crick. DNA का structure आपको पता है. Now the important thing is that how the process of replication it actually takes place in DNA. DNA के अंदर जो है replication कैसे होती है? ओके बेटे, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ. तो देखो, from the experiment of Michelson and Stahl, ठीक है, what we get that the mode of DNA replication it is semi-conservative in nature. The word semi-conservative means if whenever a new daughter DNA is formed, then in that daughter DNA, one strand is always the old parental strand and the other strand, which is a daughter strand, and that is formed by taking a help from the parent strand. It is a newly synthesized daughter strand. ठीक है, what we have studied in Michelson and Stahl experiment कि जब साइंटिस्ट जो है उन्होंने चेक की थी डेंसिटी डीएनए की, तो केस 1 के अंदर okay beta, what I am saying कि in the experiment of Michelson and Stahl, what we find that कि when the two scientists they check the process of DNA replication in the bacterium E. coli, okay, what they find that in case 1, when those E. coli cells they are put in nitrogen 15 medium, then the newly synthesized daughter DNA, okay, in both the strands of the daughter DNA nitrogen 15 isotope is there. And in case 2, when they perform the experiment again, then you find that they have a daughter DNA that is actually a hybrid having intermediate density. So here in the second case, साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या स्टडी किया कि एक स्टैंड जो है वो ऐसा स्टैंड था जो ओल्ड पैरेंट स्टैंड था और उसमें नाइट्रोजन 15 जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया था, और अनदर स्टैंड जो था वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्टैंड था जिसमें नाइट्रोजन 14 मीडियम था, बिकॉज केस 2 के अंदर उन्होंने नाइट्रोजन 14 में ई कोलाई बैक्टीरियम को रखा था, तो इसीलिए उन्हें हाइब्रिड डीएनए मिला. ठीक है बेटा, इसके बेसिस पे व्हाट द साइंटिस्ट कंक्लूड दैट द मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव, मींस आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डॉटेड डीएनए वन स्ट्रैंड इज ऑलवेज द ओल्ड वन which is the parent strand and another strand is the newly synthesized daughter strand. So now I am here discussing with you that how the process of replication it actually takes place. ठीक है बेटे, रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है ये हम स्टडी कर रहे थे. तो देखो, whenever the process of replication has to be done, ठीक है, जब भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस होना है, then you know that DNA is a long polymer. DNA जो है वो एक long polymer है and both the strands of DNA they are intertwined with each other. ठीक है, दोनों strands जो है वो एक दूसरे के साथ intertwined हैं, so it is not possible that the whole DNA it opens at the same time. ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा डीएनए एक ही टाइम पे जो है वो ओपन हो जाएगा. तो व्हाट इज द स्पेशल थिंग कि whenever the replication of the DNA has to be taken place, then the main thing is the opening of the DNA helix it actually takes place at a very specific point. ठीक है, सारा डीएनए एक ही टाइम में ओपन नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही डीएनए हेलिक्स जो है वो ओपन होना शुरू होता है. ठीक है, एंड दैट पॉइंट वेयर द ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स इट टेक्स प्लेस, दैट पॉइंट इज एक्चुअली नोन एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. So this origin of replication it is at a different point in case of different organisms. That जैसे कि human beings हैं, तो human beings में origin of replication जो है वो DNA helix पे कोई अलग point हो सकता है. अगर E. coli bacterium है, then here in case of E. coli bacterium that origin of replication may be a separate point. ओके बेटे, तो जिस पॉइंट से DNA ओपन होना शुरू होता है जिसको हमने origin of replication बोला है, ठीक है, उसके बाद जितना डीएनए ओपन हो गया है
उससे हमें एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ओपनिंग के पार्ट डीएनए स्ट्रैंड्स के नजर आती हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। फिर से सुनेंगे कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है, देन द होल डीएनए इज नॉट गोइंग टू ओपन एट द सेम टाइम. The opening of the two strands of the DNA, it takes place at a specific point, and that point is known as origin of replication. Okay, children? And when the DNA it start opens, then the opened strands of the DNA, they assumes a Y letter shape. You can see kind of a structure, and that is known as the replication fork. तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास टू स्ट्रैंड्स डीएनए के हमें नजर आ रहे हैं. फर्स्ट स्ट्रैंड हैज द पोलैरिटी इन 3' to 5' डायरेक्शन, एंड अनदर स्ट्रैंड हैज द पोलैरिटी इन 5' to 3' डायरेक्शन. देखिए जहां पे मैंने लिखा है लीडिंग स्ट्रैंड, तो वो लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो डीएनए का फर्स्ट स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 3' से 5' डायरेक्शन में है. हमेशा डीएनए के नीचे से रीड करना शुरू करेंगे. तो देखिए यहाँ पे 3' लिखा है, यहाँ पे 5' लिखा है. So this is the first strand of the DNA which is known as the leading strand. Okay children, उसके बाद देखिए जो सेकंड स्ट्रैंड है डीएनए का उसकी पोलैरिटी 5' to 3' डायरेक्शन में है. तो दोनों ही स्ट्रैंड, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दे एक्ट एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स. तो देखो फर्स्ट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' डायरेक्शन में है, तो उसकी हेल्प से न्यू डॉटर स्ट्रैंड इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. तो इसका मतलब अगर पेरेंट स्ट्रैंड पोलैरिटी 3' to 5' डायरेक्शन में रखता है, तो डॉटर स्ट्रैंड जो है जो बनेगा, जो नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, उसकी पोलैरिटी पेरेंट स्ट्रैंड के अपोजिट होगी. अगर पेरेंट की 3' to 5' डायरेक्शन में पोलैरिटी है, तो इसका मतलब डॉटर स्ट्रैंड की 5' to 3' डायरेक्शन में पोलैरिटी होगी. ओके बेटे, व्हाट इज द चीफ एंजाइम that is doing the task in the process of replication? So you also know the name of that enzyme. The name of the enzyme is DNA polymerase. ठीक है, and the full name of the enzyme is DNA dependent DNA polymerase. देखो नाम से पता लग रहा है कि अगर वो DNA polymerase है, this means this enzyme has to do the process of polymerization. And for this purpose, what this enzyme has to do, तो ये एंजाइम क्या करता है, ये सेल जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में से बेसिस को पिक करता है और डॉटर स्ट्रैंड के लिए उन बेसिस को जोड़ना शुरू करता है. ठीक है बेटे, पर कैसे जोड़ेगा, तो कहते हैं कि उसके लिए जो पेरेंट स्ट्रैंड है इट एक्ट एज अ गाइडिंग स्ट्रैंड. क्योंकि जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हुए हैं, then there are some of the nitrogenous bases that remains on the first strand, and there are some of the nitrogenous bases that goes with the second parent strand. तो फर्स्ट पेरेंट स्ट्रैंड पे जो भी नाइट्रोजेनियस बेसिस प्रेजेंट है, इट मे बी एडेनाइन, इट मे बी ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको डीएनए पॉलीमरेज रीड करता जा रहा है. इमेजिन करिए कि फर्स्ट बेस जो है वो एडेनाइन है, तो डीएनए पॉलीमरेज कम्स एंड रीड व्हाट इज द फर्स्ट बेस प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट स्ट्रैंड whose polarity is in direction 3' to 5'. तो उसको पता लगता है कि वहां पे कौन सा बेस प्रेजेंट है, एडेनाइन प्रेजेंट है. इसका मतलब सेल में से वो कौन सा बेस उठाएगा, थाइमिन. तो ही पिक्ड द बेस थाइमिन एंड जॉइंड इट ऑन द डॉटर स्ट्रैंड. डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर ज्वाइन करना शुरू कर देता है. ठीक है, उसके बाद उसे ग्वानिन पता लगा है कि ग्वानिन इज द सेकंड वन. तो ग्वानिन इज गोइंग टू बी बाइंड विद साइटोसिन. तो सेल में से उसने साइटोसिन उठाना है, उसको बाइंड करना है डॉटर स्ट्रैंड के प्लेस पे. ठीक है, फिर उसको पता लगता है कि साइटोसिन है, तो साइटोसिन को ग्वानिन के साथ, थाइमिन है तो थाइमिन को एडेनिन के साथ. तो इमेजिन करिए कि ऐसे वो बेसिस उठाता जा रहे हैं, वन बाय वन बेसिस अटैच होते जा रही है, एंड हमारे पास एक डॉटर स्ट्रैंड तैयार हो जाता है. ओके बेटे, पर वो कहते हैं कि व्हेनेवर वी हैव टू फॉर्म अ न्यू थिंग, जब भी हमने कोई नई चीज जो है वो तैयार करनी होती है, तो पहले सबसे पहले हम उसका एक प्राइमर तैयार करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द सिमिलर वे, जैसे कि हमने अपने घर की वॉल्स जो है उसको पेंट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पर प्राइमर अप्लाई करते हैं, एंड देन हम मेन पेंट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उससे पेंट अच्छे से उसके ऊपर अपीयर होता है. तो इन द सिमिलर वे, जब न्यू डॉटर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज टू बी फॉर्म्ड, तो इनिशियली देयर इज अ स्ट्रैंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर स्ट्रैंड, इट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड दैट इज नोन एज द प्राइमर स्ट्रैंड. ठीक है बेटे, तो उसके लिए देयर इज वन अनदर एंजाइम एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज प्राइमेज. ठीक है, P फॉर प्राइमर एंड P फॉर प्राइमेज. तो ये प्राइमेज एंजाइम जो है
वो इनिशियली क्या करता है, वही करता है जो डीएनए पॉलीमरेज ने बाद में करना है, वो बेसिस को रीड करता जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो जो प्राइमर स्टैंड है उसके ऊपर प्लेस जो है वो बनाता जाता है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज जो है उसने एक तरीके से हेल्प करनी है, तो प्राइमर जो है, ठीक है, एक तरफ एक स्टैंड है जिसके ऊपर उन बेसिस ने बाद में अटैच होना है, डीएनए पॉलीमरेज ने करना है, और प्राइमेज एंजाइम उन बेसिस को अलग करके डीएनए पॉलीमरेज के लिए रखता जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्राइमेज एंजाइम को पता लगा कि ऑन द फर्स्ट स्टैंड ऑफ द डीएनए, ठीक है, एडेनाइन इज प्रेजेंट, तो प्राइमेज जो है वहां से एडेनाइन का कॉरेस्पॉन्डिंग बेस जो है एक साइड पे रख देगा कि एडेनिन को थाइमिन के साथ बाइंड करना है, तो लेटर ऑन डीएनए पॉलीमरेज का वो थाइमिन उठाता है, ऑलरेडी प्राइमेज एंजाइम ने रखा हुआ है उस थाइमिन को, उसको उठाता है एंड फटाफट ज्वाइन करने शुरू कर देता है। तो डॉटर स्टैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्टैंड की जगह पे पहले प्राइमर स्टैंड बनता है, उसके ऊपर वो बेसिस अटैच होते जाते हैं, ओके बेटे। तो नाउ देयर इज अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटेड विद द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज इट वर्क एफिशिएंटली व्हेन इट हैज टू बी वर्क्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज बहुत ही हैप्पी फील करता है अगर उसको जो है 5' to 3' डायरेक्शन में बेसिस को ज्वाइन करना होता है। तो देखो फर्स्ट स्टैंड के केस में मैंने आपको बताया पैरेंट स्टैंड हैज द पोलैरिटी 3' to 5', इसका मतलब डॉटर स्टैंड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में बनना शुरू होगा, 5' to 3' में। तो ये वाला जो फील्ड है कि इस डायरेक्शन में काम करना जो है वो पसंदीदा है किसके लिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए, तो वो बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करेगा। Immediately the enzyme pick up the bases and they attach those bases on the daughter strand, and in this way a continuous daughter strand is formed, ठीक है। I am using the word continuous, बनने वाला नया daughter strand जो first strand की हेल्प से बनता है वो एक continuous strand होता है, उसमें कोई गैप नहीं होता bases के बीच में। But what is happening at the second parental strand? देखो पहले parental strand से तो new daughter strand तैयार हो गया, पर सेकंड पेरेंटल स्टैंड भी तो डॉटर स्टैंड बनाने वाला है ना, और आपको पता है एंड उसकी पोलैरिटी कौन सी डायरेक्शन में है, खुद की पेरेंट स्टैंड की 5' to 3' डायरेक्शन में है। इसका मतलब उससे बनने वाला जो डॉटर स्टैंड है उसकी पोलैरिटी 3' to 5' होगी, and that is not according to the choice of the DNA polymerase enzyme, because DNA polymerase enzyme works efficiently in 5' to 3' direction, but now he is forced to work in opposite direction, that is 3' to 5'। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अच्छे से काम नहीं करता, बहुत ही रूखे तरीके से काम करता है। एक बेस जो है इसको रीड करता है कि भाई यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट है, एडेनिन को पिक किया, उसके बाद उसको ज्वाइन कर दिया, देन फिर थोड़े टाइम के लिए जो है वो ब्रेक ले लेता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बेस को रीड करता है कि गार्निन इज देयर, तो गार्निन इज गोइंग टू बी बाइंड साइटोसिन को बाइंड किया, फिर ब्रेक ले लिया। तो फ्रेगमेंट्स जो है डीएनए की फॉर्म होती है न्यू डॉटेड डीएनए की, but these are in the form of fragments or bases, not a continuous strand is formed. So this continuous strand is formed in that case, and these fragmented type of DNA which actually develops with the help of the second strand or second parental strand of the DNA whose polarity is in 5' to 3' direction. It is a kind of a discontinuous strand, and these fragments were first studied by the scientist Okazaki. So that's why in honor of the scientist they are known as the Okazaki fragments. Okay. Now what about this discontinuous strand? तो ऐसा नहीं होता कि ये fragment से fragment की form में रह जाएंगी, तो later there is one another enzyme which play a significant role in the process of replication, and the name of the enzyme is DNA ligase, ठीक है बेटे। ligase word का itself meaning जोड़ना होता है, तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इसको फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ देता है, और जो स्टैंड डिसकंटीन्यूअस था वो बाद में क्या बन जाता है, कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, ठीक है बेटे। इसीलिए फर्स्ट स्टैंड से डेवलप होने वाले कॉन्टिन्यूअस स्टैंड को लीडिंग स्टैंड भी नेम दिया गया है, और सेकंड पेरेंटल स्टैंड से डेवलप होने वाले नए डॉटर स्टैंड को लैगिंग स्टैंड नेम दिया गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा उससे डिले हो जाता है, एंड लेटर ऑन डीएनए लाइगेज they join the fragments। तो देखो यहाँ पे आपको फ्रेगमेंट नजर आ रही है, ये डिसकंटीन्यूअस स्टैंड है, ये कंटीन्यूअस है, इसको हम लीडिंग स्टैंड भी कहते हैं, इसको हम लैगिंग स्टैंड भी कहते हैं, एंड द सेगमेंट्स दे आर लेटर joined by the enzyme DNA ligase। ओके ओके बेटा, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम?
Replication is clear to all of you? Yes, but an application is clear. Speak up. Shall I proceed? Yes, but this we have done. Michelson and Stahl experiment we have already done. So now I am proceeding with the next one. What are the various enzymes that are involved in the process of DNA replication? So here I have mentioned the name of some of the enzymes. The first type of enzymes are helicases. ठीक है, as the name itself indicate, if they are the helicases enzyme, अगर वो helicases enzyme है, तो फिर उनका टास्क क्या है यहाँ पे DNA replication में, that they are involved in the opening of the DNA helix. ठीक है, इन्होंने क्या करना है, DNA helix जो है उनको ओपन करना है. So it is written in your book, if you have read the chapter, that the opening of the DNA helix, it cannot take place randomly at any place. ठीक है, DNA helix की opening जो है वो किसी भी place पे as it is कहीं पे भी नहीं हो जाती. It always occurs at a specific place, and that place is known as origin of replication. And the origin of replication, it differs for different type of organisms. Okay, so what is the function of helicases enzyme? They are involved in the process of opening of the DNA helix. Okay, children. उसके बाद वो कहते हैं कि there is one another enzyme known as topoisomerases. Okay, the names are not mentioned in the book. Only the name of two enzymes are given in your book. One is DNA polymerase, another is DNA ligase. The rest of the three enzyme I have added from my old book. तो उसमें से मैंने ये ऐड किए हैं, इसलिए पेंसिल अपने हाथ में रखिए एंड उनके फंक्शन लिखते रहिए. हेलिकेस एंजाइम का फंक्शन है ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स. ओके बेटा, देयर इज वन अनदर एंजाइम टोपोआइसोमरेसेस. तो टोपोआइसोमरेसेस एंजाइम is actually involved in relieving the tension that develops in the two strands of the DNA when its opening takes place. अब हिंदी में सुनेंगे मैं क्या बोल रही हूँ कि टोपोआइसोमरेसेस एंजाइम जो है उनका फंक्शन ये है कि जब दो स्ट्रैंड डीएनए के ओपन होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इंटरबाइंड है और फिर से वो ज्वाइन हो सकती हैं, तो जो ओपन स्टैंड है उनमें जो टेंशन डेवलप होती है उसको ये रिलीव करते हैं ताकि वो फिर से आपस में इंटरबाइंड ना हो जाए. ओके, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ टोपोआइसोमरेसेस. दे रिलीव द टेंशन डेवलप इन द ओपन स्टैंड ऑफ द डीएनए. एंड डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन सबको मालूम है. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज द चीफ पॉलीमराइजिंग एंजाइम और ये क्या करता है, पिक द बेसिस एंड इट इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ द न्यू डॉटर डीएनए. ठीक है, these nitrogenous bases are present in the constitution of the cell. Another very important function that is related with DNA polymerase enzyme is that it is also involved in the repair mechanism of the DNA. ठीक है, which you will going to study in your higher classes. मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि DNA polymerase enzyme जो है वो बहुत ही efficiently work करता है. ओके बेटा, अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि इफ वी कंसीडर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन केस ऑफ ई कोलाई बैक्टीरियम, तो इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर यू रेड दैट इन ई कोलाई बैक्टीरियम द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैज टू बाइंड 4.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर. ठीक है, जो काफी ज्यादा है, पर कहते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है. And the entire process of replication is done by this enzyme only within 38 minutes. ठीक है, and similar is the process in case of human DNA too. ठीक है, ह्यूमन के अंदर डिप्लॉयड कंटेंट जो है वो डीएनए का कितने बेसिस रखता है, 6.6 into 10⁻⁹ बेसिस रखता है. तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, पर कहते हैं कि in spite of its high speed, the enzyme is not doing any kind of mistake. Most probably enzyme जो है वो mistake नहीं करता है. ठीक है, और अगर एंजाइम जो है उसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से एक्सीडेंटली the enzyme bind any of the wrong base, तो ऐसा नहीं है कि वो wrong base जो है उसको अटैच करके आगे वाले बेसिस पे चला जाता है, तो फिर से एंजाइम जो है वो वापस आता है and it correct the base and read the base what is present on the parent DNA and attach the
complementary based accordingly. ठीक है, the enzyme is not supposed to do the mistake. So this kind of property that is related with the enzyme DNA polymerase, it is actually related with the this DNA repair mechanism. ये DNA polymerase enzyme जो है वो DNA को repair भी करता है. अगर कोई correct base join हो गया, incorrect base join हुआ है तो वापस आता है, फिर से रीड करता है पेरेंटल स्टैंड के बेस को और करेक्ट बेस को ज्वाइन करता है. ओके बेटे. Another very important thing is कि अगर DNA polymerase एक एंजाइम है तो हर एक एंजाइम जो है it needs a substrate for its functioning. You have read in the previous chapter last year. एंजाइम एक्शन के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं. That enzyme has to bind with the substrate, then the enzyme substrate complex has to be formed. So similar is the case with DNA polymerase enzyme. So here this enzyme DNA polymerase, it also need substrates. इसको भी सबस्ट्रेट की जरूरत है. तो यहाँ पे इसके जो सबस्ट्रेट होते हैं वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं. फिर से सुनेंगे. द सबस्ट्रेट्स that is needed by the enzyme DNA polymerase is deoxyribonucleotide triphosphates. ठीक है, ट्राइफॉस्फेट वर्ड पे ध्यान देंगे. आपने ATP का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, ADP का मालूम है. You know that these phosphate bonds, they are actually the energy rich bonds. So here also in case of deoxyribonucleotides triphosphate, which is actually a substrate, here the energy rich bonds, that is phosphate bonds, are present. तो कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, वो ये जो ट्राइफॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में प्रेजेंट है वो सेटिस्फाई करते हैं. ओके बेटे. दूसरी चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि एफिशिएंसी बहुत है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की. विद इन फ्यू सेकंड एंटायर डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है. अगर इनकरेक्ट बेस अटैच होता है तो उसको करेक्ट भी करता है. इसे डीएनए रिपेयर कहते हैं. और डीएनए में रिपेयर जो है वो थायमीन ग्रुप की वजह से होता है. थायमीन का क्या रोल है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि हाउ द थायमीन इज प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. एंड दिस इज नॉट द केस विद आरएनए. आरएनए के साथ ऐसा नहीं होता बिकॉज इन केस ऑफ आरएनए थायमीन इज नॉट देयर. इंस्टेड ऑफ थायमीन यूरैसिल इज देयर. ओके बेटे. प्राइमेस एंजाइम पे आ गए हम. तो प्राइमेसेस एंजाइम्स आर सच टाइप ऑफ एंजाइम्स which are actually involved in the preparation of the primer stand before the synthesis of the daughter stand. मैंने आपको बताया किसी भी चीज को अगर हमने फाइनल रूप देना है तो उससे पहले हम उसकी प्रीलिमिनरी फॉर्म तैयार करते हैं और उसके ऊपर हम जो है उसके फाइनल फॉर्म जो है उसको तैयार करते हैं. तो वी हैव टू सिंथेसाइज हियर द डॉटर डीएनए. ठीक है बेटे. तो दिस डॉटर डीएनए इज एक्चुअली हैव टू बी सिंथेसाइज्ड बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. But before the DNA polymerase enzyme, there is another helping enzyme that helps the DNA polymerase in sorting of the bases that is actually required by the DNA polymerase later on. Okay, and he makes a primer stand ready for the synthesis of new daughter stand for the attachment of the bases over this primer stand. ओके. तो those enzymes are known as primases. ये प्राइमर स्टैंड को तैयार करते हैं जिसपे बाद में नया डॉटर स्टैंड बनता है और बेसिस को सेग्रीगेट करके रखते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में ताकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फटाफट बेसिस स्टैंड को उठाता जाए एंड डॉटर स्टैंड जो है वो विद इन फ्यू सेकंड तैयार हो जाए. ओके. डीएनए लाइगेज का फंक्शन आपको मालूम है. डीएनए लाइगेज इज इन्वॉल्व्ड इन द लाइगेटिंग ऑफ द फ्रैगमेंट्स दैट एक्चुअली डेवलप्स at the second parental strand. ठीक है. Which strand is known as the lagging strand and these fragments are known as the Okazaki fragments. तो DNA ligase enzyme का function है DNA की smaller fragments को join करना. Okay, this DNA ligase enzyme it is also involved in the process of recombinant DNA technology, which you will going to be study in the chapter biotechnology later on in this book. ठीक है. तो जिसे हम genetic engineering भी कहते हैं. तो उसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में से भी आइसोलेट द डीएनए एंड वी इंसर्ट दैट डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म. और फॉरेन डीएनए जो हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से सिलेक्ट करते हैं और जिसे किसी नए होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं उस फ्रैगमेंट की को जोड़ने में और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने में डीएनए लाइगेज एंजाइम का एक इंपॉर्टेंट रोल है.
We will study more about this in chapter 1 of biotechnology, that is principle and processes of biotechnology. Okay, beta. So this completes our topic that is given on page number 106, section number 6.4.2, the machinery and the enzymes. तो go through this topic. उसमें सारा कुछ बताया हुआ है एप्लीकेशन के बारे में, और आपको बताए हुए हैं रोल इन सभी एंजाइम्स के। तो उसमें से 3 न्यू ओके बेटा, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 107 पर वेयर फिगर नंबर 6.8 इज गिवन, एप्लीकेशन फॉर लिखा हुआ है। तो उसमें आपको उसने बताया है कि the process of DNA replication, it actually takes place in the S phase of the cell cycle, ठीक है। सेल साइकिल जो है उसके अलग अलग फेसेस है ना, G1 फेज है, देन G2 फेज है, एंड इंटरमीडिएट फेज को हम S फेज कहते हैं, which is known as the synthesis phase, ठीक है। तो सिंथेसिस फेज में एक्चुअली क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड न्यू डॉटर डीएनएस दे आर फॉर्म। So here he has mentioned a very important line. I'm going to read it for you. A failure in cell division after DNA replication result in polyploidy. ठीक है। तो immediately after the synthesis of the daughter DNA, or when the process of DNA replication it actually completes, जब DNA replication का process complete हो जाता है, तो उसके बाद वो कहता है कि सेल डिवीजन जो है वो थॉरली कंप्लीट होना जरूरी है, अदरवाइज पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलीप्लॉइडी की जो है वो अलग अलग टाइप्स की है, इट मे बी एन्यूप्लॉइडी, इट मे बी यूप्लॉइडी। इट इज एक्चुअली रिलेटेड विद द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी सेल डिवीजन के अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, देन उसके पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अगर साइटोप्लाज्म की डिवीजन ना हो तो सारे के सारे क्रोमोसोम जो है दे रिमेन इन द सेम न्यूक्लियस। तो सच टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडी it is mostly experienced in case of the plant species where many chromosomes they are lying suspended in the common cytoplasm. Okay beta, so such type of chromosomal abnormalities it result if immediately after the process of DNA replication, अगर DNA replication के process के बाद, ठीक है, क्या नहीं होता है, सेल डिवीजन जो है उसके ये दोनों इवेंट्स कंप्लीट नहीं होते, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन, तो उसके बाद पॉलीप्लॉइडी क्रिएट हो जाएगी एंड क्रोमोसोम्स जो है वो कॉमन साइटोप्लाज्म में रहेंगे। तो दिस कंप्लीट दिस टॉपिक, तो गो थ्रू द टॉपिक। उसके बाद देखिए देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज गिवन इन द बुक, ट्रांसक्रिप्शन। तो हियर वी हैव डिस्कस्ड DNA replication and how the process of transcription it actually differs from DNA replication. So there is a very important thing that is unique to transcription only. First, you are familiar with the term transcription. The transcription means the synthesis of the messenger RNA from the DNA. ठीक है बेटे, DNA से messenger RNA के बनने का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो मैंने आपको 11th में भी बताया था कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है, 2 times the opening of the DNA helix takes place. First time the DNA helix it opens for the synthesis of the new daughter DNAs, and second time what happened, the DNA helix it again opens during the G2 phase, but here not for the synthesis of any of the daughter DNA but for the purpose of transcription and translation. Okay बेटे, तो देखो दूसरी बार जब डीएनए हेलिक्स ओपन होता है तो क्राइटेरिया सेम रहेगा, बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए दे ओपन, बट व्हाट इज द स्पेशल थिंग इन ट्रांसक्रिप्शन, एज यू हैव स्टडीड अर्लियर इन डीएनए रेप्लिकेशन, कि दोनों ही स्ट्रैंड जो है वो दोनों पेरेंट स्ट्रैंड गाइडिंग स्ट्रैंड की तरह बिहेव करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ 2 न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स, बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन नॉट बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए पेरेंट डीएनए एक्ट एज द गाइडिंग स्टैंड, ठीक है बेटे, दोनों स्टैंड यहाँ पे गाइडिंग स्टैंड की तरह बिहेव नहीं करेंगे ट्रांसक्रिप्शन में, सिर्फ पहला स्टैंड फर्स्ट स्टैंड whose polarity is in the direction p' to 5', वही यहाँ पर जो है पॉलीमरेज एंजाइम ने उसके बेसिस को रीड करना है और उसके बेसिस पे उसने मैसेंजर आरएनए को तैयार करना है, यानी मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस इट एक्चुअली टेक्स प्लेस एट द फर्स्ट स्टैंड ऑफ द डीएनए।
डीएनए के फर्स्ट स्टैंड पर होगी। ठीक है बेटे, सेकेंड स्टैंड जो है डीएनए का, इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्ट एज द गाइडिंग स्टैंड। ठीक है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। But what is surprising here, though the second strand whose polarity is in 5' to 3' direction, it is not involved in the process of transcription, but scientists called this strand, which is not involved in the process of transcription, as coding strand. ठीक है, ये खास बात है कि दूसरा स्टैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व तो नहीं होता, पर फिर भी साइंटिस्ट ने उसको कोडिंग स्टैंड का नाम दिया है। वो इसलिए दिया है कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान, ठीक है, there is a unit which is known as transcription unit and it has 3 component, promoter region, structural gene and terminator region। तो ये सारे जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसकी अगर हमने लोकेशन बतानी है ना, तो वो लोकेशन हम डीएनए के सेकंड स्टैंड के बेसिस पे देती हैं, जिसको हम कोडिंग स्टैंड कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंड जो है सिर्फ वही पेरेंट स्टैंड यहाँ मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, दूसरा स्टैंड इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके बेटे, नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि व्हाई द टू स्टैंड्स दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दोनों ही स्टैंड क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में? तो इसका आंसर ये है कि बोथ द स्टैंड दे एक्ट एज टेम्पलेट स्टैंड, गाइडिंग स्टैंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। देन हाउ मेनी मैसेंजर आरएनए नाउ गेट प्रिपेयर्ड? तो फर्स्ट स्टैंड से एक मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, सेकंड वाले से भी एक और मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। और अगर आप उन दोनों मैसेंजर आरएनए को कंपेयर करेंगे ना, देन दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस टू ईच अदर, दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ये रखते होंगे। चलिए